السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مینڈس کی جانب۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس، مجموعی صورتحال کا جائزہ، بجلی کے بلوں کے بارے میں وزارت توانائی کی سفارشات پر غور۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وائس آف امریکہ کی جنوبی اور وسط ایشیا ڈویژن کی سربراہ عائشہ تنظیم کی ملاقات۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی کی بھی ملاقات میں موجودگی۔ انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، ہم اپنے حلف کے پابند ہیں۔ نگراں حکومت کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اجلاس، بلوچستان اور سندھ کے چیف سیکرٹریز اور انسپیکٹر جنرل پولیس کی بریفنگ، انتخابات کے دوران ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، الیکشن کمیشن کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کی تجاویز جلد بھیجنے کی ہدایت، انتخابی مراحل آئین اور قانون کی روشنی میں پرامن اور غیر جانبدارانہ انداز میں مکمل کیے جائیں گے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ انتخابی عمل سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت، چیف الیکشن کمشنر سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، انتخابی شیڈیول، حلقہ بندیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، الیکشن کے انعقاد اور حلقہ بندیوں کے بارے میں اپنا موقف پیش کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا، ہیڈ اسلام اور سلوانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی، قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن اور وہاڑی کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، پاک فوج اور امدادی ادارے ریلیف آپریشن میں مصروف عمل، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راشن کی فراہمی اور علاج معالجے کے لیے میڈیکل کیمپس قائم، مشکل وقت میں مدد پر اہل علاقہ کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ ملک کے دفاع اور سالمیت کے خلاف آن لائن مواد پھیلانا غیر قانونی ہے۔ اسلام کسی بھی مذہب یا فرقے کے خلاف سوشل میڈیا پر آن لائن مواد پھیلانا سنگین جرم۔ تعزیرات پاکستان کے تحت ان جرائم میں سزائے موت، عمر قید اور جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد دیکھنے کی صورت میں FIA یا PTA کو اطلاع دی جائے۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور آئندہ حج سے متعلق انتظامات پر تبادلہ خیال۔ کل بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، 12 ربیع الاول کو قومی سیرت کانفرنس ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر۔ مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوت ہمارا فخر۔ حوالدار سہیل اقبال 30 مارچ 2022 کو ٹانک میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ جرت اور بہادری پر شہید کو تمغہ بصارت سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ میں توسیع، مزید 2 ارکان کی شمولیت، انجینئر عامر ندیم دورانی اور انجینئر احمد جان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست خراج عقیدت، بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی میڈیا سے گفتگو۔
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, कुपवाड़ा में एक कश्मीरी शहीद, आजादी चचा सरजान बरकाती शुपैया में झूठे केस में गिरफ्तार। भारत कश्मीरियों को कत्ल तो कर सकता है लेकिन उनके जज्बे आजादी को शिकस्त नहीं दे सकता। हुर्रियत क़यादत। मुस्लिम दुश्मनी में मोदी फाशिस्ट हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब। मुस्लिम दुश्मनी में हिंदू असातिज़ा भी पेश पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान मुखालिफ नज़्म में बच्चों को बढ़ाने लगे। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से बच्चों को इस्लाम मुखालिफ ज़हन साजी। गुज़िश्ता दिनों हिंदू टीचर की जानिब से कम सिन मुसलमान तालिब इल्म को हिंदी की किताब न लाने पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। रूसी इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में तेजी। रूस ने तोला और बेल्गोरोड के इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए, ड्रोन मार गिराए। जवाब में रूस के डोनेट्स्क और सोमी ओब्लास्ट पर हमले। सूडान में फौज और रैपिड रिस्पांस फोर्स के दरमियान शदीद झड़पें, 39 शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हालिया झड़पों में 50,000 से ज्यादा शहरी बेघर। चीन अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी वजीर तिजारत की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा तिजारत और माशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीन में अमरीकी तिजारती मुफादात को फरोग देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने पर इत्तेफाक। पंद्रह साल बाद एशिया कप का पाकिस्तान में इनेकाद। मेगा इवेंट का कल से मुल्तान में आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेपाल दिन 2:30 पर मद्दे मुकाबिल। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एशिया पर देखिए बराह रास्त। एशिया कप में शरीक किसी टीम को आसान हरीफ तस्वुर नहीं करते, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम एशिया कप में पहली बार खेलने पर पुरजोश हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम से मुकाबला आसान नहीं होगा। कप्तान नेपाल क्रिकेट टीम रोहित पौडेल। एशिया कप से कबल भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों को बड़ा धचका। भारतीय बैटर केएल राहुल अनफिट होने के बायस पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ मैच से बाहर। श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा समेत 4 अहम बॉलर्स इंजरी के बायस एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। भरपूर सपोर्ट करने पर कौम का शुक्रगुजार हूं। मजीद अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए पुरअज़्म हूं। अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। और कराची में अनोखा मंजर। शहर कायद की मरकजी शाहराह फैसल पर शेरनी की एंट्री। चहल कदमी करते हुए वीडियो वायरल। देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। महकमा जंगली हयात ने अपनी तहवील में ले लिया। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में बिजली के बिलों के बारे में वजारत तवानाई की सिफारिशात पर भी गौर किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वॉइस ऑफ अमेरिका की जनूबी और वस्त एशिया डिवीजन की सरबराह आयशा तंजीम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। निगरां वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरां विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि इंतख़ाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को मुआविनत फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। सोलंकी साहब, पाकिस्तान में हर शख्स पूछ रहा है, हर सियासी कारकुन पूछ रहा है, पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं इंशाल्लाह। सर फंड्स का इशू था इनका, फंड्स का इशू हल हुआ है इनका? मुझे उन्होंने फंड्स का इशू नहीं। सर इंतखाबात सर्दियों में हो रहे हैं। सर इंतखाबात सर्दियों में हो रहे हैं।
اس کا فیصلہ آپ الیکشن کمیشن سے لے لیں، وہ گرمیوں میں کرائیں، سردیوں میں کرائیں، کل کرائیں، پرسوں جب بھی کرائیں گے ہم۔ سر آپ خود آئے تھے یا کس نے بلایا تھا؟ جی بیٹا، خود آئے تھے یا بلایا تھا کسی نے؟ میں نے خود درخواست کی تھی، میرے دوست ہیں، ان کا نام نثار درانی ہے۔ ہم نے آئین کا حلف لیا ہے اور آئین کے اندر آرٹیکل 19 بھی ہے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ پہلے سیشن میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ نے الیکشن کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ الیکشن کمیشن نے صوبہ سندھ کی انتظامیہ پر واضح کیا کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی طرف پہلا قدم متعلقہ تمام حکام کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے۔ اس کے اقدام کے بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں اور مانیٹرنگ ٹیموں کی تعیناتی ہونی ہے، اس لیے جلد از جلد ٹرانسفر اور پوسٹنگ سے متعلق تجاویز الیکشن کمیشن کو بھیجی جائیں۔ الیکشن کمیشن اجلاس کے دوسرے سیشن میں چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان نے انتخابی امور سے متعلق امور کے بارے میں بریف کیا۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے کمشنرز، ڈیپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنرز کے تقرر اور تبادلے کے لیے تجاویز الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجوزہ پولنگ اسٹیشن کے لیے سیلاب سے متاثرہ عمارتوں کی مرمت کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آئی جی بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ انتخابات کے تمام مراحل آئین اور قانون کی روشنی میں پرامن اور غیر جانبدارانہ انداز میں مکمل کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ عام انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے سید نیر حسین بخاری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کے دوسرے ارکان میں سینیٹر شریف رحمان، فیصل کریم کنڈی، تاج حیدر، سید نوید قمر اور مراد علی شاہ شامل تھے۔ وفد نے انتخابات کے انعقاد اور حلقہ بندیوں سے متعلق اپنا موقف پیش کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وفد کو یقین دلایا کہ الیکشن کمیشن کی بھرپور کوشش ہے کہ حلقہ بندیوں کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید نیر حسین بخاری اور دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہم نے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ناظرین، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا، ہیڈ اسلام اور سلیمانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی ہو رہی ہے۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن اور وہاڑی کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں خواجہ محمد کلیم سے۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں 35 برس بعد بھاری مقدار میں پانی چھوڑنے کے بعد سے اب تک سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر گزشتہ 2 روز سے پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہاں پانی کا بہاؤ منگل کے دن 7000 کیوسک کم ہوا۔ ہیڈ سلیمانکی پر پانی کے اخراج میں 9000 کیوسک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہیڈ اسلام پر 24 گھنٹے کے دوران پانی کی مقدار 13000 کیوسک کم ہوئی، جبکہ میلسی سائفن اور لودھرا میں دریائے ستلج کے ایمپریس پل پر بھی پانی کی مقدار میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جلال پور کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ 70000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے 4 جنوبی اضلاع بہاول نگر، وہاڑی، بہاولپور اور لودھرا میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور سینکڑوں رہائشی بستیاں سیلاب سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ریسکیو اہلکار سیلاب متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کو ان کے مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے ہیں۔ ہمارے جو ہیں 16 پوائنٹس ہیں جہاں پہ 150 سے زائد ریسکیو ہمارے ورک کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایویکویٹ اور ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ اینیمل کی بھی ٹرانسپورٹیشن اور ان کو بھی ہم پانی سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں۔ لوگ جی کافی پریشان ہیں، مال واسطے جڑا نا جی وہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ مال لوگ ایک 4 10 جانور لے تے سڑکاں تے پھر رہے ہیں بیچارے، جگہ جگہ تے ڈیرے لا تے بیٹھے۔ متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم ہیں جہاں شہریوں کو مفت طبی امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی اشیاء اور جانوروں کے چارے کی قلت کا بھی خدشہ ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ادھر بہاولپور میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عبداللہ مختار۔
भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े गए पानी से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला के नशेबी इलाके बहुत मुतासिर हुए हैं। इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक है, जिसमें मजीद कमी आ रही है। हेड सलमान की पर पानी का बहाव 85,000 क्यूसिक है, जबकि हेड इस्लाम के मकाम पर 80,000 से जायद पानी का रेला गुजर रहा है। इसी तरह मैलसी साइफन पर पानी का अखराज 1,10,000 क्यूसिक है और इसकी सतह में बदतरीज कमी आ रही है। मुसीबत की इस घड़ी में पाक फौज भी अपने हम वतन मुतासरा लोगों की मदद के लिए दिन रात मसरूफ है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज की बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक आर्मी की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन तकसीम का सिलसिला भी जारी है। पाक आर्मी की जानिब से मैलसी, चिश्तियां, मिंचनाबाद, पाकपतन, आरिफवाला, विहाड़ी, लोधरा, बोरेवाला और हेड सलमानकी में मकामी इंतजामिया से मिलकर मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। सूबाई वज़ीर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर SM तनवीर ने बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन इकदाम बरूए कार लाए जाएं। अहमदपुर शर्किया में मुतअद्दिद हिफाजती जिम्मेदारा बांध टूटने से बस्तियां और वसी काश रकबा ज़ेर आब आ गया है, जबकि 25 मवाज़ियात सैलाबी पानी से मुतासिर हुए हैं। 231 मकानात सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। 3,552 एकड़ ज़ेर काश्त फसलें सैलाब की नजर हो चुकी हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब में फंसे 37,151 लोगों को अब तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से मुराद किसी नस्ल, मजहब या फिरका वारियत की बुनियाद पर किसी तबके या शख्स के खिलाफ पोस्ट लगाना, कमेंट करना या शेयर करना है। इससे न सिर्फ किसी की दिल आजारी होती है बल्कि मजहबी मुनाफरत में भी इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना गैर कानूनी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 16 के तहत रियासत मुखालिफ, गुस्ताखाना और नफरत अंगेज मवाद की सजा 7 साल कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस्लाम या किसी भी फिरके या मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद फैलाना एक संगीन जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसकी सजा सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना है। सोशल मीडिया पर नस्ल, मजहब या फिरका वारियत पर किसी तबके या शख्स के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना जुर्म है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की मौजूदगी की सूरत में FIA या PTA को इत्तला दें। नाज़रीन, भारतीय हुक्मरान और बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ हमेशा से अपने यहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियों से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में एलानिया और खुफिया तखरीबकारी को हवा देती रही है। अब की बार बदकिस्मती से जड़ावाला मजहब की आड़ में रॉ के कारिंदों की तखरीबकारी का निशाना बना। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला शाद। रवां साल 3 मई को भारतीय रियासत मणिपुर में मसीहियों पर हिंदू जुनूनियों ने धावा बोल दिया। इन फसादात के शुरू होने के 36 घंटों के अंदर मसीही बरादरी के 249 गिरजाघर नजर आतिश कर दिए गए। ये ईसाई कुछ फसादात ताहाल जारी हैं। मजमूई तौर पर इन फसादात में 450 से ज्यादा गिरजाघर जलाए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा ईसाई इन फसादात में जान की बाजी हार चुके हैं। महज यही नहीं, भारतीय रियासत हरियाणा में 31 जुलाई को मुस्लिम कुछ फसादात शुरू हुए, जिनमें अब तक 20 मुसलमान शहीद किए जा चुके हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों, जबकि भारतीय पंजाब में सिखों पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बेहमाना मजालिम का सिलसिला भी ताहाल जारी है। आलमी बरादरी और ज़राए इब्लाग ने भारत में बसने वाली मजहबी इकाइयों की इस बदतर सूरत हाल पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया तो हमेशा की मानद भारतीय खुफिया एजेंसी ने अपनी अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान में तखरीबकारी का प्लान बनाया और अब की बार बदकिस्मती से जड़ांवाला की मसीही बरादरी राह के गमाश्तों का टारगेट ठहरी। जड़ांवाला में मसीही इबादत गाहों पर हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी राह के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। इस इंदोने हक वाक़े के मरकजी मुल्ज़मान ने हिरासत में तफ्तीश के दौरान होशरुबा इंकशाफात किए और साथ ही ये तस्लीम किया कि ये सारी तखरीबकारी भारतीय खुफिया एजेंसी राह के इमा पर की गई और राह ने ही इस सारी तखरीबकारी को हैंडल किया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इस भारतीय रियासती दहशतगर्दी को दस्तावेजी शवाहिद के साथ आलमी बरादरी के सामने रखेगा। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
मजहबी उमूर के निगरान वफाकी वज़ीर अनीक अहमद से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और आइंदा हज से मुतल्लिक़ इंतज़ामात पर तबादला ख्याल हुआ। निगरान वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सहूलतों में इजाफा मेरा मिशन है। यकीन है कि सऊदी क़यादत हमेशा की तरह ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि 12 रबीउल अव्वल को कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। सऊदी सफ़ीर ने बताया कि राब्ता आलमी इस्लामी के ज़ेर एहतमाम दौरे हाजिर के मसाइल पर अनकरीब आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। नाज़रीन, फ्लड टेलीमेट्री के कौमी मास्टर प्लान का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस मंसूबे में 707 फ्लड टेलीमेट्री स्टेशन का क़याम शामिल है। पहले मरहले में पंजाब में 151, सिंध 46, खैबर पख्तूनख्वा 136, बलूचिस्तान 207, गिलगित बल्तिस्तान 84 और आज़ाद कश्मीर में 83 टेलीमेट्री कायम किए जाएंगे। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए आबी वसाइल और कानून के निगरान वफाकी वज़ीर अहमद इरफान असलम ने कहा कि जदीद टेलीमेट्री आलात की शमूलियत से बरवक्त हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल पैमाइश को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेलीमेट्री स्टेशन का क़याम सैलाब की दुरुस्त पेशगोई और बरवक्त वार्निंग जारी करने के लिए ज़रूरी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में दर्ज FIR के तहत चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर कल तक जेल भेज दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिम को कल अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्जिम इस बात से इनकारी नहीं है कि उसने तोशाखाना से कुछ नहीं लिया। केस में मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अता तारड़ ने कहा कि तोशाखाना के तहाइफ को मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील किया गया। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि आइन और कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का मतलब ये नहीं है कि मुजरिम सादिक और अमीन बन गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फरमाइशी खानों की सहूलत अटक जेल के बाकी कैदियों को भी मुयस्सर होनी चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ऐसा अमली तौर भी नजर आना चाहिए। कलात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में भी ऐसे फैसले हुए जिनमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। एक सवाल पर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि आइंदा इलेक्शन में सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एहतसाब अदालत के जज साजिद आवान ने केस की समाअत की। नैब की जानिब से तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। वजारत दाखिला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने पर खुसूसी JIT तश्कील दे दी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम में FIA, IB, ISI और इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम शामिल हैं। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मादरे वतन के जान का नजराना पेश करने वाले सपूत हमारे लिए फख्र हैं। हवालदार सुहेल इकबाल 30 मार्च 2022 को टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। जुर्रत और बहादुरी पर शहीद को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगाए बिसारत से नवाजा गया। शहीद बहुत अच्छा बच्चा है। माँ पिया ना फरमेदार, बच्चियां ना प्यार, भैन भाइयों ना प्यार, माँ भी ना खिदमत का अपने बच्चों नास्ते दुश्मनों का मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर सके। मैं खुशकिस्मत माँ
जिसना बेटा सही था। बहुत अच्छे शोर थे, वालिद भी बहुत अच्छे थे। बच्चे बहुत याद करते हैं। छोटा बच्चा है, वो भी छोटा है, वो कहता है कि मेरे पापा ड्यूटी पर हैं, वो छुट्टी आएंगे, मेरे लिए कपड़े लाएंगे, मेरे जूते लाएंगे। सिर्फ बच्चे ही हैं शहीद के, और शहीद के बच्चों के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। हमें फख्र है कि वो शहीद हुए हैं। शहीद का एक बहुत बड़ा मुकाम है। शहीद जो है वो जिंदा है, वो हमको बचा। मैं कहता हूँ कि वालिदैन के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र दे। मैं सब लोगों को कहता हूँ, वालिदैन को, कि ये अल्लाह की कुदरत है, हमारे बच्चे मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं। ये शहादत हर आदमी को नहीं मिलती है। उनकी कब्रें लाद है, अपना निशान बता रही हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। उनकी अगली जान में भी और दुनिया में भी इज्जत है। ये हर बंदे का फर्ज बनता है कि शहीद की इज्जत करो। इन शहीदों के साथ इन शहीदों की विनती करने वो इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने कहा है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए आने वाली नस्लों को मनशियात की लानत से महफूज रखना होगा। इस धंधे में मुलविस मौत के सौदागर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इस्लामाबाद में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ड्रग फ्री मुल्क बनाना है। इस सिलसिले में एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने चेयरमैन PTA रिटायर्ड मेजर जनरल हफीजुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें टेलीकॉम शोबे की तरक्की, 5G की नीलामी और स्पेक्ट्रम के हवाले से मुत्तल्लिका उमूर पर ज़ेर गौर आए। ये फैसला किया गया कि आइंदा 10 माह में 5G की नीलामी कर दी जाएगी। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि 5G की नीलामी में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्फिन के लिए टेलीकॉम सर्विसेज का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए मजबूत इकदाम करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के निगरान वफाकी वजीर मोहम्मद समी सईद की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में तालीम और सेहत के शोबों में मंसूबों और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने स्कूल के बाहर बच्चों के दाखिले के मंसूबे को सराहते हुए कहा कि तालीम से महरूम बच्चों को मसावी मौके फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी निसाब को नस्ल के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। निगरान वफाकी वजीर मोहम्मद समी सईद ने कहा कि जदीद चैलेंजेस से हम आहंग निसाब तलबा की जहन साजी और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अहम है। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वजारती मनसूबाबंदी मुतालिका महकमों के साथ बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत बनाए। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना क्योनका ने मुलाकात की और तिब्बी शोबे, ग़िज़ाई प्रोग्राम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि जब तक अफगानिस्तान से पोलियो का खात्मा नहीं होता, पाकिस्तान में खतरा मौजूद रहेगा। इस हवाले से पाक अफगान बॉर्डर पर मजबूत प्लान तश्कील दिया जा रहा है। बॉर्डर पर पोलियो वैक्सीनेशन के निज़ाम को भी हंगामी बुनियादों पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे पर आला सतह इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन और स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडे पर अमली इक़दामात को सराहते हुए कहा कि तिब्बी शोबों में ताउन जारी रहेगा। इस्लामाबाद में सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के मौजू पर सेमिनार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और वज़ीर आज़म की मुशीर मशाल हुसैन मलिक ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद की हौसला शिकनी की ज़रूरत है। तफसील बताएंगी मरियम मलिक। सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन की मदद कैसे की जाए और इस तशद्दुद को रोका कैसे जाए, अहम सवालात पर मुबाहिसे के लिए इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज ज़ैनब अलर्ट, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जैसे कवानीन मौजूद हैं, मगर ठोस शवाहिद न होने की वजह से बहुत से मुकदमात अदालतों में पड़े रह जाते हैं। फ्रांसिक शवाहिद के निज़ाम को मजबूत करने की जरूरत है। We need to go a step beyond the legislation a little bit, because that's how we see it in the courtroom. That's how I see people come in and go, and the cases that we handle every day. Then the issue is the mindset.
Now this legislation is superimposing a special court right on the gender-based system that we'd structured in Punjab through administrative measures, which is very encouraging. सेमिनार से खिताब में वज़ीर आज़म की मुशीर बराए इंसानी हकूक मिशाल मलिक ने कहा कि आज के दौर में मुतासरीन को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि वो कमज़ोर नहीं, वो आवाज़ उठा सकते हैं। We've seen successive governments in the past taking commendable steps also by ratifying international conventions like CEDAW and aligning with SDGs, showcasing a commitment to empowering rights and gender equality. Government's efforts to empower women have fallen short in achieving significant change, especially in the fields of judiciary, health and law enforcement. सेमिनार के मुकर्रिरीन ने सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा करने के लिए जदीद और बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस के इस्तेफादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना में तौसी की गई है। निगरां सूबाई काबीना के मज़ीद 2 वज़रा इंजीनियर आमिर रतीब दुरानी और इंजीनियर अहमद जान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़रा से हल्फ दिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान, सूबाई निगरां वज़रा और इंतज़ामी महकमों के सरबराहान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की सदारत में खुद मुख्तार इदारों के बोर्ड से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में खुद मुख्तार इदारों के बोर्ड से मुतल्लिक कानूनी मामलात और सूबाई हाउसिंग अथॉरिटी बोर्ड के मामलात का खुसूसी जायजा लिया गया। इजलास में PHA के तहत प्लॉट्स के अलॉटमेंट की नई पॉलिसी पर भी नजरसानी का फैसला किया गया। निगरां सूबाई वज़ीर कानून, एडवोकेट जनरल और दीगर मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल एक कमेटी बोर्ड के गुज़श्ता इजलास में किए गए तमाम फैसलों पर निगरां वज़ीर आला को सिफारिशात पेश करेगी। चीफ सेक्रेटरी को 34वें बोर्ड इजलास में प्लॉट्स के अलॉटमेंट से मुतालिक किए गए फैसलों की छानबीन करने की भी हिदायत की गई है। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डुमकी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। बाद में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हुसूल पाकिस्तान के लिए बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मीर अली मर्दान खान डोमकी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। इलेक्शन कमीशन जैसे ही इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा, इंतखाबात करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों में तेज़ी ला रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुपवाड़ा में एक 42 साला बेगुनाह शहरी को शहीद कर दिया। फौजियों ने शहरी मुख्तार अहमद शाह को जिले के इलाके करना में मुहासरा तराशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। नई दिल्ली की ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी ने मारूफ आलमदीन सरजान बरकाती को, जो आज़ादी चाचा के नाम से भी मशहूर हैं, शुपैया में एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। सरजान बरकाती 2016 में भारतीय फोर्सेज के हाथों मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत के बाद भारत मुखालिफ रैलियों और जुलूसों में मखसूस अंदाज में नारेबाजी की वजह से मशहूर हुए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जुमे को कायद तहरीक सैयद अली गिलानी की दूसरी यौम शहादत के मौके पर श्रीनगर हैदरपुरा चलो की अपील की है। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद रमजान, मीर शाहिद सलीम, मुख्तार वाजा, फरीदा बहन जी और दीगर ने श्रीनगर में अपने बयानात में कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय जराइम को बेनकाब करने के लिए उस दिन एहतजाजी मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी के मुकद्दस मकसद के लिए वक्फ कर दी है। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने वकील टीचर जहूर अहमद बट की जानिब से दफ़ा 370 की मनसूखी से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर उन्हें मुअत्तल किए जाने पर सख्त रद्द का इजहार किया है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने कश्मीरी आवाम का जरिए माश, रोजगार और जमीनें सब छीन ली। मुस्लिम दुश्मनी में मोदी सरकार का घिनौना और मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने लगा। इस मकरू मुहिम में हिंदू असातिज़ा भी मुस्लिम दुश्मनी में पेश हैं। हिंदू इंतहा पसंद असातिज़ा भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने और भारतीय बच्चों की इस्लाम मुखालिफ ज़हनसाज़ी में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हिंदू टीचर की सरपरस्ती में एक बच्ची मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल गलत अल्फाज अदा कर रही है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची की शदीद मनफी ज़हनसाज़ी की गई है। बच्ची इंतहाई सख्त अल्फाज में मुसलमानों के खिलाफ नज़्म की सूरत में संगीन पैगाम दे रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाईचारे की कोई अहमियत नहीं, भारत में मुसलमानों को खूब मारा जाए और उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है।
बलूचिस्तान के ज़िला केज के ईरान से मुत्तसिल सरहदी इलाके रिदेकमंद क्रॉसिंग पॉइंट पर इमिग्रेशन वीज़ा सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। पासपोर्ट इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विस के आगाज़ से न सिर्फ सरहद के दोनों जानिब मुसाफरों और ज़ायरीन को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम होंगी, बल्कि इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को भी मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। रिदेकमंद पाक ईरान सरहद में मुकाम पर तीसरा इमिग्रेशन और वीज़ा एंट्री पॉइंट है। मकामी लोगों ने दरीना मुतालबा पूरा होने पर मसरत का इजहार किया है। शहर कायद की मरकजी शारा फैसल पर शेरनी की एंट्री चहलकदमी करते हुए शेरनी की वीडियो वायरल हो गई। शेरनी को काबू करके महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया है। तफसील बताएंगे नवाब अली शाह। कराची में शहर फैसल पर अचानक नजर आने वाली शेरनी को उसके मालिक ने काबू करके दोबारा पिंजरे में डाल दिया है। ताहम महकमा जंगली हयात सिंध ने कानूनी कार्रवाई के लिए शेरनी को अपनी कस्टडी में ले लिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहर फैसल पर सदर थाने के करीब शाम के वक्त अचानक शेरनी को घूमते हुए देखा गया और देखते ही देखते हजारों लोग जमा हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान शेरनी करीब वाक़े एक बिल्डिंग की पार्किंग में दाखिल हो गई। मौके पर मौजूद शेरनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया, जिसका कहना है कि शेरनी बीमार है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। ये सिविल सोसाइटी में नहीं रख सकते, यानी सिविल एरियाज में नहीं रख सकते, जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं वहाँ नहीं रख सकते। इस वक्त रेस्क्यू लिया गया है, उसको पिंजरे में डाल दिया जाए और इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको ले जाएंगे। पहले ये होता है कि इसका पिंजरा बराबर होता है और इसको जो लोग हैं ज्यादा जो है ना उसको ले जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई अकेला बंदा है इसको ट्रेवल कर रहा होता है। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने शहर फैसल पर शेरनी की मौजूदगी का नोटिस लेते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब माहरीन का कहना है कि शेरनी का इस तरह खुलेआम और बेकाबू होकर शाहराहों पर घूमना किसी भी खतरे से कम नहीं है और जंगली जानवर होने के नाते कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता है। मौके पर पहुंचने वाली जंगली हयात की टीम का कहना है कि इस वाक़े के तमाम तर रुख देखे जाएंगे और शेरनी को पालतू जानवर के तौर पर रखने का लाइसेंस और दीगर मुतल्लिका कागजात चेक करके वाक़े की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद शेरनी को उसके मालिक के हवाले करने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। समुद्र पार पाकिस्तानियों से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर जवाद सोहराब मलिक की सदारत में वजारत के इदारों के हुक्काम का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वजारत के तमाम इदारों की जानिब से जारी मंसूबों, हासिल करदा अहदाफ और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान खुसूसी मुशीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हमा वक्त कोशा है। वर्कर्स वेलफेयर फंड के वफ़द से बातचीत करते हुए जवाद सोहराब ने हिदायत की कि इदारा बैरून मुल्क मुकीम मजदूर तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह पर तवज्जो मरकूज रखे। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि तहकीक के बगैर किसी भी माशरे में तरक्की मुमकिन नहीं है। कसूर में निजी यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तालीम इंसान के किरदार को बुलंद करती है। उन्होंने कहा कि हमें निजी शोबे के ताउन से टेक्नोलॉजी के जदीद रुझानात को मुतारिफ करा के मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। तालीम के फ़रोग़ में जामियात अपना मौसर किरदार अदा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए हम सबको मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा। रियासत को कमज़ोर करने और इंतशार फैलाने की सोच रखने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। ज़िला दीरबाला और ज़िला मर्दान के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर ने कहा कि बहुत जल्द सूबे की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स जारी हो जाएंगे और वो अपने इलाकों में तरक्याती काम शुरू कर सकेंगे, जिससे निचली सतह पर अवामी मसाइल हल होंगे। वफ़द ने इलाके के अवाम को दरपेश मसाइल मुश्किलात से गवर्नर को आगाह किया। अलावा अजी गवर्नर ने पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के वफ़द से भी मुलाकात की। मुलाकात में इदारे की बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, जिम्मेदाराना सहाफ़त से कौमी यकजहती के फ़रोग़ के मौजू पर इस्लामाबाद में मीडिया वर्कशॉप हुई, जिसमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चौधरी मजहर। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होने वाली वर्कशॉप से खिताब करते हुए एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर आसम खिची ने कहा कि सहाफत जिम्मेदाराना पेशा है, जिसके कौमों की समाजी, मुआशरती, तहजीबी और इक्तिसादी जिंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। उन्होंने कहा सहाफ़ी मुआशरे में आला शऊर व इक़दार को फ़रोग़ देकर कौमी यकजहती के पुरवकार जज्बा को परवान चढ़ाएं।
मुकर्रिरीन ने कहा कि सहाफत लोगों की रहनुमाई करने, अफराद को एक दूसरे से जोड़ने, मालूमात वहाँ पहुँचाने, अवाम को हकाइक से रोशनास कराने और इस्लाह मुआशरा का नाम है। मुकर्रिरीन ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में जदीद रुझानात और पेशा वराना सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से रोशनी डाली। ये जो लोग हैं ये अवाम में जाते हैं और अवाम में गलतफहमियाँ दूर करने के लिए इनका अहम किरदार होता है और ये इंशाल्लाह वो किरदार अदा करेंगे। एक दूसरे के ख्यालात आपस में शेयर करने का मौका मिला तो हमें खुशी हुई कि हमारे यहाँ के दोस्त भी हमारे बलूचिस्तान वालों के साथ मोहब्बत करते हैं और बलूचिस्तान वालों को चाहते हैं। सारा पाकिस्तान एक जिस्म की मानंद है, लेकिन हमें अपने मसाइल मिल बैठ के हल करना चाहिए। हम लोग इधर आए हैं, जो हमें इज़्ज़त और जो प्यार मोहब्बत हमें मिली है, एज ए साफ़ी कलम के ज़रिए हम लोग उसको बयान करेंगे। हम तो अपने कलम के ज़रिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान मतलब लाज़िम व मलज़ूम है। पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है। जो हमारे ट्रेन मास्टर था, जो उनसे सीखा, इंशाअल्लाह ताला अपने इलाकों में जाकर उनके मुतालिक अपने दूसरे साफियों को भी ब्रीफिंग देंगे। बलोच हमारे भाई हैं। पंजाब के लोग जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से बिल्कुल ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे अपने सगे भाई से मोहब्बत करते हैं। वर्कशॉप के शुरका ने कहा कि कौमी यकजहती से मकासद एक हो जाने से मंजिल का तयन जल्द हो जाता है। सहाफ़ी दौरे जदीद के मीडिया को इस्तेमाल में लाकर इसके फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। एशिया कप का इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 2:30 पर शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। एशिया कप में 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 2 सितंबर को पालिकेले में होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल है। एशिया कप का मेला सजने को है तैयार। पाकिस्तान की मेजबानी में 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दिन 2:30 पर शुरू होगा। तफसील फरहान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताई तकरीब और इब्तदाई मैच के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कप का इब्तदाई मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा जबकि इफ्तिताई तकरीब बरकी कुमकुमों की रोशनी में सजाई जाएगी। मुल्तान के शायकीन क्रिकेट तारीखी लम्हात और कौमी टीम को करीब से इन एक्शन देखने के लिए बेताब हैं। नेपाल टीम है उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा मतलब है कि मोस्ट वेलकम करते हैं दिल से कि वो आएँ, आके हमारे पाकिस्तान को, हमारे कल्चर को देखें। हमने टिकट्स भी परचेज़ कर ली हुई हैं और किट्स भी खरीद ली हैं कि हमने जोश जज्बे के साथ जाना है और अपनी टीम को सपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। नेपाल टीम जो एशिया कप खेलने के लिए फ़र्स्ट टाइम आई है और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट मैच ही उनका एशिया कप का मुल्तान है, तो हम अपने दिल और जज्बे के साथ उनको खुशामदीद और वेलकम करते हैं। अब तक खेले गए एशिया कप के 15 टूर्नामेंट्स में से कौमी टीम 2 मरतबा फातेह रही। माजी करीब में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों में बेहतरी और वनडे रैंकिंग में टॉप पर आने के बाद क्रिकेट मुबसरीन पाकिस्तान को 16वां एशिया कप जीतने के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। एशिया कप के तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होंगे। एशिया कप वो शानदार इवेंट है जो एशियाई ममालिक को मुकाबले के जज्बे और दोस्ती से मुतहद रखता है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि एशिया कप में शरीक किसी टीम को आसान हरीफ तस्वुर नहीं करते। मेहनत जारी रखते हुए एशिया कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मैंने सीखा है कि क्रिकेट को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। जो भी ओपोनेंट होता है उसको आप पूरी प्लानिंग करते हैं, जिस तरह हम बाकी टीमों के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं और उसी तरह हम लेके चलते हैं। जी प्लान हुआ है, हमारा डिस्कशन हुई है, हमने उनकी टीम को देखा है वो कौन की उनकी स्ट्रेंथ है, कौन से उनके वीकनेस हैं, तो उस पर भी हमने बात की है और फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। पहला मैच है, ओपनिंग मैच है और इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे नोट से स्टार्ट करें। नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडल ने कहा है कि एशिया कप में पहली बार खेलने पर पुरजोश हैं। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम से मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी से साबित करेंगे कि हम एक अच्छी टीम है।
रोहित पौडेल ने कहा कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के विकेट बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए साजगार है। We are playing for the first time Asia Cup, and it's a big achievement for all of us, especially Nepal, and it's a big occasion for us, and especially Pakistan is a very good side, and we want to give a competitive gift to them, and as well as India also. एशिया कप के इफ्तिताही मैच से कबल पाकिस्तान और नेपाल की टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने तीनों शोबों में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। पाकिस्तान ने सन 2000 और 2012 में टाइटल अपने नाम किया। नेपाल की टीम ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें पहली बार वनडे फॉर्मेट में मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप से कबल भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों को बड़ा धचका। भारतीय टीम के बैटर केएल राहुल मुकम्मल फिट न होने के बायस एशिया कप के इब्तदाई 2 मैचेस से बाहर हो गए हैं। केएल राहुल टीम के दीगर खिलाड़ियों के हमरा कंडीशनिंग कैंप में 100% फिटनेस साबित नहीं कर सके, ताहम वो टीम के हमरा श्रीलंका जाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को पालेकेले में खेला जाएगा। श्रीलंका के 4 बॉलर्स इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए। श्रीलंका के लेग स्पिनर वेनिंदु हसारंगा इंजरी की वजह से एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। दुष्मंथा चमीरा, लाहिरो मधुशंका और लाहिरो कुमारा भी अनफिट होने के बायस एशिया कप से बाहर हो गए हैं। श्रीलंका की टीम अपना पहला मैच 31 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ पालेकेले में खेलेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में मुनक्किदा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो में चांदी का तमगा हासिल किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड में मेडल के साथ नवाजा है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पाकिस्तानी पूरी मीडिया का, जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है। और उसके साथ साथ मैं एथलेटिक फेडरेशन का जनरल कमसाई साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटीज़ दी। और अपने कोच का सलमान इकबाल भट्ट साहब का अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रात दिन मेहनत करवाई। ईरान में होने वाली पीस एंड फ्रेंडशिप गेम्स में पाकिस्तान जूडो टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 4 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने ईरान ए को 3-2 से शिकस्त दी। इससे कबल ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान बी को जेर किया था। पाकिस्तान के सैयद मोहम्मद ने वुशु 60 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान ने पीस एंड फ्रेंडशिप गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं शाहीन सफ्तर। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की जद में रहेंगे, जबकि मशरकी पंजाब, कश्मीर, शुमाली इलाकाजात में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। इस हवाले से डीजी महकमे मौसमियात ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस इस दफा रोजाना की बुनियाद पर पेशंगोई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में उसके असरात काफ़ी ज़्यादा है, और उससे हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो ज़्यादा हो गया। मतलब मेरा कहने का ये है कि जी बारिशें अगर होती हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, तो यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अर्बन फ्लडिंग से जो है ना वो काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा अभी तक अगला महीना भी है, तो फ्लड के हिसाब से रिवराइन फ्लड या फ्लैश फ्लडिंग होगी पहाड़ी इलाकों में, तो इनसे थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। हालिया मानसून बारिशों के बायस शुमाली इलाकों बेशमूल वफाकी दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत और हव्स में कमी आई है। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीलियों और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे मुस्तैदी से अपना फराइज सरंजाम दे रहे हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बखूबी निमटा जा सके। शाहीन सफदर, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। सबसे पहले बात की जाए नौकंडी की, तो नौकंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 42, सरगोदा 38, मुजफ्फराबाद 36, जबकि चित्राल में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी 35, कराची 31, पेशावर 37, जबकि कोयटा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। मौसम की सूरत हाल भी आप जान चुके हैं। खेल के मैदान में कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है वो भी अनीस ने आपको आगाह किया। इसी के साथ ही बुलेटिन पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हम हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहिएगा।